हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल लर्निंग साइंस विद सीके। बच्चों, in the last class we have started the class 6 science NCERT book, and already we have completed the chapter. And in this video we will discuss about the keywords, summary of the chapter, and the exercise. Okay, and as possible activities and projects. Okay, so let's start. Before starting, I would like to talk to you that if anybody of you is new to my channel, please subscribe to my channel to get updates about the further new videos. Okay, I will complete your syllabus in a very short time, so be connected with my channel. Okay, so that you will be benefited. बच्चों, आप लोग में से अगर कोई भी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी तो आपको पता चल जाएगा, और आप जो है जल्दी से जल्दी आप जो है देख पाएंगे। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कीवर्ड्स। ओके, और आपका चैप्टर का नाम क्या है? माइक्रो फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम? ओके, दिस इज द चैप्टर 1, फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम? In the last chapter we have discussed about the food varieties. Okay, and in this under it we get to know about the ingredients. Okay, that in what are the ingredients that is used to make any food item. Okay, also we have discussed about the food materials and sources, and we get to know that there are two types of food material and sources. That is, first is a plant source and next is animal source. Okay, then we get to know that if any item, what are the ingredients are there, and what are the sources from where we are getting those. Okay, it may be plant or animal source. After that we get to know, we have studied about the parts of a plant, that is flower, fruit, stem, leaf. Okay, root system, bud, what is node, internode. This is only for the purpose that whatever we are eating, that is edible part. If we discuss about the edible part of any plant, then we get to know that particular food is that particular part of that plant. Okay, for example, if you talk about potato, that is the a type of stem. Okay, तो ये सब हम लोग बच्चों ने जाना। और स्प्राउटेड हमने जाना कि स्प्राउटेड क्या होता है, और दैट इज ऑल्सो ए गुड सोर्स ऑफ फूड। एंड स्प्राउटिंग का मेन पर्पस क्या होता है वो अभी हमने सीखा। देन वी गेट टू नो अबाउट द एनिमल सोर्सेस ऑफ फूड, एंड अंडर इट वी गेट टू नो अबाउट द honey. Okay, and other animal sources, milk, then meat, fish. Okay, and milk is used to make varieties of food. Then we also get to know, after studying all this chapter, we get to know that all the living organisms are divided in three categories according to their habit of fooding, that is herbivore, carnivore, and omnivore. Okay, in this way we have completed the chapter. Now we will discuss keywords. So ingredients: edible, nectar, sprouted seeds, herbivore, carnivore, and omnivore. These are the keywords that is used in your chapter, and it is very important to understand these words. Okay, and after understanding these words we will be able to understand the chapter very easy way. That's why we are discussing the keywords. Okay, so first keyword is ingredients. Okay, so what is ingredients? Ingredients are the materials used to prepare something. Okay, जैसे कि बच्चों कोई फूड आइटम है, कोई जैसे कि बात करें, जैसे कि चपाती बनी है आपके घर में, तो चपाती बनाने के लिए कौन सी चीजें यूज की गई? एक तो फ्लोर, देन वाटर, है ना, उसको मिक्स किया गया। तो जो फ्लोर और वाटर है, ये क्या है? ये है इंग्रेडिएंट्स। ओके, नेक्स्ट कीवर्ड इज एडिबल। एडिबल मतलब, edible means the part of the plant or animal used as food
to which we can eat. तो एडिबल क्या है कि एक पर्टिकुलर प्लांट का या मेनली प्लांट का हम लोग डिस्कस करते हैं कि प्लांट का एक पर्टिकुलर पार्ट है, मे बी ये रूट, स्टेम, फ्रूट, फ्लावर, लीफ, कुछ भी हो सकता है, बर्ड, है ना, नोड, इंटरनोड। तो हमारा हम जो फूड यूज कर रहे हैं तो वो कौन सा पार्ट ऑफ द प्लांट है ना। तो जो हम लोग यूज करते हैं एज ए फूड उसको हम लोग एडिबल बोलते हैं, है ना। थर्ड इज नेक्टर. नेक्टर मीन्स व्हाट? नेक्टर इज द स्वीट जूस produced by flowers to attract insects for pollination. तो नेक्टर क्या होता है? नेक्टर जो है कोई स्वीट जूस है जो कि फ्लावर्स में प्रोड्यूस होता है और उसका मेन पर्पस जो है होता है कि इंसेक्ट्स जो है फ्लावर्स के पास आए और उसका जो है फ्लावर्स का एक पॉलिनेशन होता है, एक प्रोसेस होता है पॉलिनेशन। तो उसको कंप्लीट करने के लिए जो है फ्लावर्स जो है नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं और नेक्टर जो है अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को। और इसीलिए और इंसेक्ट्स जो है ये नेक्टर को एज ए फूड यूज करते हैं, ठीक है। हनी भी इसी तरह के नेक्टर से बनता है। नेक्स्ट इज स्प्राउटेड सीड्स. तो स्प्राउटेड सीड्स क्या है? व्हेन सीड्स आर सोक्ड इन वाटर फॉर द होल डे और टू, इट जर्मिनेट्स. अगर जो है सीड जो है पूरे दिन के लिए छोड़ दिया जाता है ना। एक दिन के लिए आप छोड़ दिए, या एक दिन या 2 दिन के लिए आपने एक दिन शॉक कर लिया, दूसरे दिन आपने उसको जो है वाटर से निकाल करके कपड़े में भिगो करके जो है रख दिया, कपड़े में, है ना। कपड़े में आपने उसको बांध करके रख दिया तो वो क्या होता है? वो जर्मिनेट होता है ना। उसमें से जो है वाइट स्ट्रक्चर अराइज होता है जो कि प्लूम्यूल एंड रेडिकल बनाता है। प्लूम्यूल एंड रेडिकल आगे चल करके क्या बनाते हैं? स्टेम एंड रूट, है ना। तो ये जो है स्प्राउटेड कहे जाते हैं, स्प्राउटेड सीड्स. When seeds germinate and a white structure grows, then seed is considered sprouted. Next keyword is herbivore. Herbivore means animals which eat only plants are called herbivore, है ना। तो herbivore को क्या है? herbivore जो है वैसे एनिमल्स हैं जो कि सिर्फ प्लांट्स या उसके जो है पार्ट्स हैं उसको जो है यूज करते हैं एज ए फूड, है ना। नेक्स्ट सिमिलर वर्ड इज कार्निवोर. कार्निवोर आर एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स, है ना, जो सिर्फ मीट और जो है कि खाते हैं और प्लांट्स नहीं खाते हैं, तो उसको हम लोग कार्निवोर बोलते हैं, है ना। देन ओमनीवोर. ओमनीवोर कौन हो गए? वी ह्यूमंस. ओमनीवोर जो कि प्लांट्स का कंज्यूम भी करते हैं और एनिमल्स या दैट इज मीट भी कंज्यूम करते हैं, तो उनको हम लोग ओमनीवोर कहते हैं, है ना, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज. अब हम लोग जो है एक्सरसाइज करेंगे. चलिए हम लोग एक्सरसाइज चैप्टर में देखते हैं. उससे पहले हम लोग समरी कंप्लीट कर लेते हैं. समरी. समरी क्या होता है? हमने जो चैप्टर पढ़ा है तो हमने क्या सीखा, जो मेन हमारा निचोड़ है वो हम लोग समरी में डिस्कस करते हैं. ओके. सो देर इज ए लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया. तो क्या है कि जो हमारे कंट्री में चारों तरफ जो है वेरिएशन ऑफ क्या है? फूड है. मतलब कि हमारे देश में जो है उत्तर से लेके अगर हम दक्षिण की ओर जाएं, उत्तर और पूरब से लेके पश्चिम की ओर जाएं, तो लोगों में जो है फूड जो कंज्यूम करते हैं, जो वो फूड यूज करते हैं, उसमें आपको काफी वैरायटीज जो है मिलेगी, है ना। तो इसी को हम लोग जो है वेरिएशन इन द फूड बोलते हैं, जो हमारे डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया में है. नेक्स्ट है द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड आर प्लांट एंड एनिमल. इजी है कि हमने सीखा कि हमारा जो मेन सोर्स ऑफ फूड क्या है. हम तो फूड बना नहीं सकते, तो हमारा जो सोर्स ऑफ फूड जो है प्लांट्स है एंड एनिमल है. ओके. थर्ड इज एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर. वैसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स का यूज करते हैं एज ए फूड, तो हम लोग उसको हर्बीवोर बोलते हैं, ठीक है. एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स. और वैसे एनिमल्स जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को ही खाते हैं, तो हम लोग उसको कार्निवोर बोलते हैं, जैसे कि लायन है, टाइगर है ना. नेक्स्ट इज एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एज वेल एज अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोर.
और कुछ एनिमल्स क्या है कि वो प्लांट्स भी कंज्यूम करते हैं और एनिमल्स को भी कंज्यूम करते हैं, तो उसको हम लोग ऑमनिवोर बोलते हैं, है ना। जो मीट भी खाते हैं और वेजिटेबल्स, प्लांट्स, ये सब को भी खाते हैं। हम लोग क्या है, हम लोग ऑमनिवोर है, क्योंकि हम लोग वेजिटेबल्स भी खाते हैं, हम लोग मीट भी खाते हैं, है ना। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? क्या आपको लगता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग है ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो सेम काइंड ऑफ फूड खाते हैं? बिल्कुल नहीं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें फूड को लेकर के काफ़ी वेराइटीज़ हैं। कुछ जो है आपके हर्बीवोर हैं, मीन्स वो उसे प्लांट कंज्यूम करते हैं। कुछ कार्निवोर हैं कि वो मीट कंज्यूम करते हैं, है ना। कुछ जो है आपके क्या है, ओमनिवोर है, जो प्लांट्स को भी कंज्यूम करते हैं और मीट को भी कंज्यूम करते हैं। अब इसी में प्लांट्स को भी कंज्यूम करने वालों में भी आपको वैरायटीज मिलेगी कि कोई पर्टिकुलर प्लांट को ही कंज्यूम करता है। जैसे हम लोग ह्यूमंस वेजिटेबल्स खाते हैं, लेकिन सारे प्लांट्स को कंज्यूम नहीं कर सकते और करते भी नहीं है, है ना। और उसी तरह से जो है, अगर स्मॉल एनिमल्स है, अगर वो कार्निवोर है तो वो छोटे एनिमल्स को खाते हैं, जो बड़े कार्निवोर है वो बड़े एनिमल्स को खाते हैं, है ना। तो इस तरह से डाइवर्सिटी ऑफ फूड है ना। इसलिए सभी लिविंग बींग्स का जो है नीड ऑफ फूड जो है सेम नहीं है ना। नेक्स्ट इज, अगर आपको इसको लिखना है आप इस तरह लिख सकते हो, नो, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट फूड हैबिट depending on the food requirement. Living organisms are grouped into three categories: herbivores, animals which eat only plants, and plant products are called herbivore. For example, cow, elephant, rabbit, horse, etc. Okay. Next is carnivores. Carnivores are animals which eat other animals are called carnivore. For example, lion, tiger, lizard, etc. Third is omnivores. Omnivores are these animals eat both plant and animals. For example, dog, cat, crow, etc. Okay. Come to the next question. Name 5 plants and their parts that we eat. आपको बताना है 5 प्लांट्स का नाम बताना है और उसका हम लोग कौन सा पार्ट कंज्यूम करते हैं वो आपको बताना है। तो जैसे कि एग्जांपल स्टेम, स्टेम जो है, हम लोग पोटैटो, जिसका हम लोग स्टेम खाते हैं, वो पोटैटो जो स्टेम होता है ना। फिर जो है आपको, चलिए हम लोग बहुत सारे हैं। कैबेज, कैबेज में आप देखिए लीफ हम लोग कंज्यूम करते हैं। एप्पल हो गया, फ्रूट है। टोमेटो फ्रूट है। ब्रिंजल फ्रूट है ना। ये फ्रूट्स हैं आपके। मैंगो फ्रूट है, जितने भी है आप ये नाम ले सकते हो। कैरोट है, कैरोट रूट है आपका, है ना। बनाना, ये जो हम लोग एडिबल स्टेम होता है जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, वो फ्रूट नहीं होता है। ओके, ये तो ये आंसर आप दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम ए विद दैट इन कॉलम बी। कॉलम ए में जो आपके पास ऑप्शंस दिए हैं आपको कॉलम बी से मैच करने हैं। कॉलम ए में क्या है, मिल्क, कर्ड, पनीर, घी। Then spinach, cauliflower, carrot, lions and tiger. Herbivores. Column B में है आपके पास eat other animals, eat plant and plant products, are vegetables, are all animal products. तो यहाँ पे देखिए पहला हमारे पास जो है मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, ये आपके क्या है, ये जो है हमारे सारे के सारे एनिमल प्रोडक्ट है। हमको मिल्क जो है एनिमल से मिलते हैं। स्पिनाच, कलीफ्लावर एंड कैरेट, ये क्या है, सारे वेजिटेबल्स हैं। ये दे आर ऑल वेजिटेबल्स। ओके। देन लायंस एंड टाइगर, ये क्या है, कार्निवोर्स है ना। दे ईट अदर एनिमल्स। ठीक है। हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स, बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वेरी इजी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फिल अप द ब्लैंक विद द वर्ड्स गिवन। हर्बीवोर, प्लांट, मिल्क, सुगर केन एंड कार्निवोर। तो इसमें से आपको चूज करके भरना है। ऑप्शन ए है आपके पास, टाइगर इज ए डैश
बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। टाइगर क्या है? ये जो है कार्निवोर है, क्योंकि ये हमेशा मीट कंज्यूम करता है। बी, डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इज कॉल्ड, क्या कहा जाएगा? चूंकि डियर जो है ओनली प्लांट प्रोडक्ट कंज्यूम करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हर्बीवोर। तो यहाँ पे आप हर्बीवोर भर सकते हो। थर्ड, पैरोट ईट ओनली डैश प्रोडक्ट। पैरोट क्या खाता है? पैरोट जो है आपका ओनली प्लांट प्रोडक्ट खाता है ना? डी, द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउज बफेलोज एंड गोट इज एन एनिमल प्रोडक्ट। तो आपको बफेलोज, काउज और गोट से क्या मिलता है? मिल्क मिलता है। द मिल्क दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउ, बफेलो एंड गोट इज एन एनिमल प्रोडक्ट। ओके। लास्ट इज, वी गेट शुगर फ्रॉम डैश। हम लोग को जो है शुगर कहाँ से मिलता है? हम लोग को शुगर जो है शुगर केन से मिलता है। ठीक है, ओके। चलिए हम लोग कुछ यहाँ से भी कर रहे हैं, सजेस्टेड प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज। यहाँ पे आपको है, जैसे क्वेश्चन 1 है, यू मस्ट हैव सीन ए गार्डन लिजर्ड अराउंड योर होम। नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू सी इट, ऑब्जर्व केयरफुली एंड फाइंड आउट what it takes for food. Is the food different from that of the house lizard? तो जैसे कि आप, क्या है कि गार्डन में आप जाएंगे तो गार्डन लिजार्ड होते हैं गार्डन में। तो आपको ऑब्जर्व करना है कि वो गार्डन लिजार्ड एक्चुअली फूड, कौन सा फूड कंज्यूम करता है, और जो आपके घर में एक हाउस लिजार्ड जो आपकी दीवारों में रहता है, वो कौन सा फूड कंज्यूम करता है। क्या कोई डिफरेंस है? तो नॉर्मली बोथ आर कार्निवोर, दोनों जो है इंसेक्ट्स को खाते हैं, है ना? ये है कि गार्डन लिजार्ड को गार्डन में अदर इंसेक्ट्स और स्मॉल एनिमल्स मिल जाते हैं जिसको वो खाता है। हाउस लिजार्ड जो है नॉर्मली फ्लाइंग इंसेक्ट्स जो होता है वो उसको मिल जाते हैं, तो वो उसको खाता है ना? आपको ये लिखना है तो आप लिख सकते हैं, गार्डन लिजार्ड इन द वाइल्ड टिपिकली ईट्स स्नेल्स, इंसेक्ट्स एंड कैटरपिलर्स। देखिए गार्डन लिजार्ड जो है आपका इंसेक्ट्स खाता है, स्नेल खाता है और कैटरपिलर्स को भी खाता है ना? देयर डाइट इज मेनली मेड अप ऑफ क्रिकेट्स। क्रिकेट जो एक ग्रीन कलर का इंसेक्ट होता है, and this is supplemented by fruit fly, small fly, mealworm, silkworm and other। तो इतने सारे जो है इंसेक्ट जो है मिल जाते हैं गार्डन लिजार्ड को खाने के लिए, है ना? Their long sticky tongue can catch any insect that fly or crawl near them, है ना? तो जो है आपका वो जो उनका जो टंग होता है वो बहुत ही स्टिकी होता है, लेंदी होता है। तो वो जो है किसी भी इंसेक्ट को जो है कैच कर लेते हैं और कंज्यूम कर जाते हैं। एज ए रिजल्ट देयर फीडिंग इज मेनली फोकस्ड अराउंड दीज इंसेक्ट्स, है ना? तो गार्डन लिजार्ड को तो आपने देखा कि बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, और जो आपका जो हाउस में जो आपको लिजार्ड होता है तो उसको जो है ये इंसेक्ट्स मिल जाते हैं, जो उड़ते कीट पतंग हम लोग कहते हैं। तो उसको वो कंज्यूम करते हैं, उसको वो खाते हैं, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 2, मेक ए लिस्ट विथ पिक्चर्स व्हेन पॉसिबल ऑफ फूड आइटम्स जनरली टेकन बाय पीपल ऑफ different regions of India. Place these on a large outline map of India to display in your classroom. ओके, आपको एक बड़े से चार्ट में जो है आपको पहले तो इंडिया का उसमें मैप बनाना है। और जैसे कि नॉर्थ इंडिया के जो फूड है, राइस एंड व्हीट, है ना, एंड वेजिटेबल्स, और जो नॉर्थ इंडिया में फूड आइटम बनते हैं उसके आप पिक कलेक्ट कर लीजिए। साउथ इंडियन फूड्स के पिक जो है आप कलेक्ट कर लीजिए, है ना? उसी तरह आप जो है ईस्टर्न पार्ट के फूड आइटम्स और वेस्टर्न पार्ट के फूड आइटम्स जो है कलेक्ट करिए, और उसको आप जो है मैप में स्टिक करिए, और ये आप अपने क्लास में जो है इसको लगाइए। ओके, ये आपका टास्क है। थर्ड, find out the names of plants that grow in water and which are eaten as food। देख बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो कि आपके ग्रो करते हैं वाटर में, और वो हम लोग जो है एज ए फूड कंज्यूम करते हैं। तो बहुत सारे हैं, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको शो कर रहा हूँ। जैसे आपका जिजानिया एक्वेटिका है, दैट इज वाइल्ड राइस। जो कि वाइल्ड राइस होता है, वो अपने राइस की तरह ही थोड़ा होता है, ये टोटली पानी में ही ग्रो करता है। ओके,
फिर देखिए वाटर कालट्रोप, दैट इज ट्रापा नटन्स। ये आप लोग मोस्ट ऑफ यू खाए होंगे, है ना, ये आपके लोकल मार्केट में हम मिलता है। ठीक है। देन चाइनीज वाटर चेस्टनट, ये देख लीजिए, ये भी आपको जो है वाटर में ग्रो करता है और एज ए फूड यूज किया जाता है। और इस तरह और भी है, लोटस का जो है सीड है वो कंज्यूम किया जाता है ना। और भी बहुत सारे हैं जो आप सर्च कर सकते हैं और अंडरस्टैंड हो सकते हैं। ओके। तो इस तरह से जो है आपका मैंने जो है कवर कराया समरी, कीवर्ड्स एंड एक्सरसाइज। ओके। एंड आल्सो दैट इज प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज। तो बच्चों कैसा लगा आपको ये वीडियो? आई होप कि आपको हर चीज़ समझ आ गया होगा। और मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप 2-3 बार वीडियोस को देखें, तो इससे आपको जो है उसको समझने में जो है इजी होगा। और जो लास्ट वीडियो हमने बनाया था आप वो अभी आप दोबारा देखिए, जिसमें कि आपको चैप्टर्स जो है मैंने कंप्लीट कराया था। ओके। तो इस तरह से जो है आपको ये पूरा कंप्लीट चैप्टर जो है विदाउट एनी डाउट जो है क्लियर हो जाएगा, आप सब चीज़ समझ जाओगे। ओके। फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप हमको पूछ सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो। ओके। और मैं हमेशा रेडी हूँ आपके क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए और आपको हेल्प करने के लिए। ओके। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू बच्चों फॉर being with me, for studying this chapter, learning this chapter. Okay, we enjoyed most. Thank you. Or if anybody of you is new to my channel, please subscribe to get updates for the further videos. Okay, thank you very much. मिलता हूँ मैं नेक्स्ट चैप्टर जो होगा आपके सिलेबस में इस समय जो पढ़ाया जा रहा होगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूंगा। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।